Okay, we'll go to the other book, The Power of the Subconscious Mind. Okay. So the subconscious heals a malignancy of the skin. Malignancy का मतलब होता है स्किन कैंसर. सो इस पर्सन को कैंसर था. अब किसी को ये जो इन्होंने प्रेयर्स और जो प्रोसेस बताया है, तो ये प्रोसेस जो हम करेंगे ये किसी भी बीमारी के लिए यूज हो सकता है ना, इन इन पर्सन को, बिकॉज ये तो सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं. डॉक्टर जोसेफ मर्फी के पेशेंट्स क्लाइंट्स जो भी थे वो सब थे, है ना, जो इनके सेमिनार्स में आते थे, जो इनसे कंसल्टेशन लेते थे. तो जब वो बीमारी में आते थे या प्रॉब्लम्स में आते थे, तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी उनको कुछ प्रोसेस एफर्मेशन वो बताते थे, है ना, और फिर वो अप्लाई करके वो लोग अपनी बीमारी ठीक करके फिर इनके पास वापस आते थे और कहते थे कि अब इनकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई है. सो इस तरह से जब हम ये करते हैं, तो ये जो गाइडेंसेस हैं जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने इस पर्सन को दिए होंगे जिसको स्किन कैंसर था, ये उसके लिए भी वैलिड होंगे, जिसको हाई ब्लड प्रेशर है उसको भी वैलिड होंगे, जिनको डायबिटीज है या थायराइड डिसऑर्डर है ना, ये वहां पे भी वैलिड होंगे, क्योंकि प्रोसेस तो सेम रहता है, बीमारी तो ठीक करनी है ना. सो लेट जस्ट रीड इट. ये बहुत ब्यूटीफुल होता है अगर हमारे पास इतने एक्सपीरियंसेस हैं इस किताब में पढ़ने के लिए. And Bharti from Indore will be reading for us. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. The subconscious heals a malignancy of the skin. A personal healing will ever be the most convincing evidence of the healing power of the subconscious mind. Over 40 years ago, I resolved a malignancy of the skin through prayer. Medical therapy had failed to check the growth, and it was getting progressively worse. A clergyman with a deep psychological knowledge explained to me the inner meaning of the 139th Psalm, wherein it says, "In thy book all my members were written, which in continuance were fashioned, when as yet there was none of them." He explained that the term book meant my subconscious mind, which fashioned and molded all my organs from an invisible cell. He also pointed out that inasmuch as my subconscious mind made my body, it could also recreate it and heal it according to the perfect pattern within it. This clergyman showed me his watch and said, "This had a maker, and the watchmaker had to have the idea first in mind before the watch became an objective reality. And if the watch was out of order, the watchmaker could fix it." My friend reminded me that the subconscious intelligence which created my body was like a watchmaker, and it also knew exactly how to heal, restore, and direct all the vital functions and processes of my body, but that I had to give it the perfect idea of health. This would act as cause, and the effect would be a healing. I prayed in a very simple way as follows. My body and all its organs were created by the infinite intelligence in my subconscious mind. It knows how to heal me. Its wisdom fashioned all my organs, tissues, muscles, and bones. This infinite healing presence within me is now transforming every atom of my being, making me whole and perfect now. I give thanks for the healing I know is taking place now. Wonderful are the works of the creative intelligence within me. I prayed aloud for about 5 minutes, 2 or 3 times a day, repeating the above simple prayer. In about 3 months, my skin was whole and perfect. As you can see, all I did was give life giving patterns of wholeness, beauty, and perfection to my subconscious mind, thereby obliterating the negative images and patterns of thought lodged in my subconscious mind, which were the cause of all my trouble. Nothing appears on your body
except when the mental equivalent is first in your mind. And as you change your mind by drenching it with incessant affirmatives, you change your body. This is the basis of all healing. Marvelous are thy works, and that my soul, subconscious mind, knoweth right well. Psalm 139, column 14. Yeah. How Yeah. नो नो we'll just do this ये वाला पैराग्राफ पहले ये जो एक्सपीरियंस है डॉक्टर जोसेफ मर्फी का है कि स्किन की मेलिग्नेंसी यानी कि स्किन कैंसर हो गया था उस जमाने में। आज के जमाने में भी लोगों को होता है तो डर जाते हैं ना एक बार, बिकॉज दिस इज अ वेरी ग्रेव काइंड ऑफ दिस थिंग। सो इमेजिन 1930 40 50s में क्या रहा होगा। तो इनको स्किन कैंसर हुआ था और ये क्लर्जीमैन जो चर्च में होते हैं, जो यू कैन से पंडित ऑफ सॉर्ट्स, जिनको बहुत डीप साइकोलॉजिकल नॉलेज थी, मतलब वो नहीं ऐसे कहा सुने वैसे वाले पंडित नहीं, उनको बहुत डीप साइकोलॉजिकल नॉलेज थी, बाइबल का बहुत ज्ञान था। उन्होंने इनको बोला है ना डॉक्टर जोसेफ मर्फी को कि आपको जो इश्यू है आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जिस गॉड ने, जिस इन्फिनिट इंटेलिजेंस ने आपके शरीर बनाया है, उसको ये भी पता है कि उसको रिपेयर और हील कैसे करना है पूरी तरह से, और उसको दोबारा होल कैसे बनाना है, संपूर्ण रूप से उसको कैसे करना है ना। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया इनको कि जैसे कोई वॉच मेकर है, जो घड़ी बनाने वाला इंसान है, अगर वो फिक्स करके घड़ी बनाता है, तो अगर घड़ी में मान लो कोई सुई का कांटा या कांटा जो होता है जिससे टाइम हम देखते हैं, अगर वो टूट जाता है या घर में घड़ी में कोई दिक्कत आती है, तो उसको ये बहुत अच्छे से पता होता है कि उस घड़ी को ठीक कैसे करना है, क्योंकि बनाई उसी ने है ना, तो उसको उसके बारे में सब पता है। तो सिमिलरली उन्होंने डॉक्टर जोसेफ मर्फी को बोला दैट जिस गॉड ने, जिस इन्फिनिट इंटेलिजेंस ने आपकी बॉडी क्रिएट की है, उनको क्या आपको रिपेयर करना नहीं आएगा? तो आपको बिल्कुल भी इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने उनको ये वाली प्रेयर बताई, प्रेयर एज इन जो रिपीटिशन के साथ इनको करनी थी, जो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डॉक्टर मर्फी ने इसको स्किन कैंसर के लिए यूज किया था, लेकिन ये तो किसी भी चीज के लिए यूज हो सकती है। इसमें मैलिग्नेंसी वर्ड तो आ ही नहीं रहा है कि मेरी मैलिग्नेंसी ठीक करनी है, वो तो बस यही कह रहे थे कि होल हीट कंप्लीट, है ना, इस तरह से। तो इट्स अ वेरी पावरफुल प्रेयर। इस लिखा हुआ है, माई बॉडी एंड ऑल इट्स ऑर्गन्स वर क्रिएटेड बाय इन्फिनिट इंटेलिजेंस, यानी कि मेरा शरीर और मेरे शरीर के सारे अंग भगवान की शक्तियों ने क्रिएट किए हैं, जो मेरे ही सबकॉन्शियस माइंड में है ना, मतलब मेरे बॉडी के अंदर है वो चीज, मेरे ही सबकॉन्शियस में है। उन भगवान ने मेरे शरीर और उसके सारे अंग बनाए हैं, उसको बहुत अच्छे से आता है मुझे हील करना, है ना। और उसकी विजडम मेरे सारे ऑर्गन्स में फ्लो करती है, टिश्यूज में, मसल्स में और हड्डियों में। और इन्फिनिट हीलिंग प्रेजेंस जो है मेरे अंदर, हम सबके अंदर इन्फिनिट हीलिंग प्रेजेंस होती है ना। हमारे खुद का पर्सनल डॉक्टर होता है जो जो गॉड का डॉक्टर है। इमेजिन कितनी अच्छी बात है। तो ये इन्फिनिट हीलिंग प्रेजेंस है मेरे अंदर, ये मेरे हर एक बॉडी के कण कण को होल और परफेक्ट करती जा रही है। मतलब होल एंड परफेक्ट, होल मीन्स कंप्लीट, कंप्लीट एंड परफेक्ट करती जा रही है। एंड आई गिव थैंक्स, जो मैंने बताया था डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमेशा थैंक यू से उसका ढक्कन लगा देता है अपने एफर्मेशन का। तो आई गिव थैंक्स फॉर द हीलिंग, एडवांस में आप थैंक यू बोल दो कि थैंक यू मेरी हीलिंग के लिए, जो मेरी बॉडी में ऑलरेडी टेक प्लेस कर रही है इस वक्त, इट्स टेकिंग प्लेस नाउ। वंडरफुल आर द वर्क्स ऑफ द क्रिएटिव इंटेलिजेंस विद इन मी। सिंपल सा सेंटेंस है, कोई खास ज्यादा नहीं है, और इसमें तो कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ कि ये वाली बीमारी, आप किसी भी बीमारी के लिए इसको यूज करो, है ना। सो दिस इज सो इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज सो यूजफुल टू अस। और वो ये वाली जो प्रेयर थी, वो दिन में 3 बार 5 मिनट के लिए करते थे, यानी टोटल 15 मिनट, है ना। और इस तरह से उन्होंने आगे ये बताया कि उनके अंदर जो इस कैंसर को लेके डाउट, वरी, फियर था, वो धीरे धीरे रिप्लेस होता गया ब्यूटी, होलनेस और परफेक्शन से, क्योंकि ये वाला थॉट आता गया। और इस तरह से उन्होंने अपनी बीमारी को 100% हील कर लिया। ठीक है। सो ये एक्सपीरियंस है कि अगर आप ऐसी बीमारी अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके ठीक कर सकते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो ना जिंदगी में, दैट वे। सो कोई भी चीज दिमाग में लेके आए और उसको हम अपने जिंदगी में इस्तेमाल करें, सो इट्स अ वेरी बिग वे ऑफ डूइंग इट। और हमारे पास इसका मतलब इतनी बड़ी पावर है ना। वी हैव द हीलिंग इंटेलिजेंस विद इन अस, इमेजिन।
हीलिंग इंटेलिजेंस विद इन अस, जिसका काम ही है हील एंड रिपेयर करना, वो है ही हीलिंग इंटेलिजेंस, है ना, हील एंड रिपेयर कर रही है। और ये वाली एफर्मेशन बोल के, और दैट आई गिव थैंक्स फॉर इट, सो दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। सो ये हम एफर्मेशन, जितनी भी आप लोगों में से किसी को भी कुछ मेडिकल इश्यूज हैं, दिन में 2 बार या 3 बार 5 मिनट के लिए हमको स्लीपी ड्राउजी स्टेट में बोलना है, रिपीट कर करके। इनिशियली आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, महीना 1.5 महीना पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ये याद होने लग जाएगी। क्योंकि मैंने इतनी लंबी लंबी एफर्मेशंस बहुत करी इन द लास्ट 5 years, तो अब मुझे वो याद होने लगी है ना। जो ये भी मैं बताती हूँ, गॉड फ्लोज थ्रू मी एज ब्यूटी, हार्मनी, लव, पीस, perfect true expression, perfect action, and abundance. I know it is as easy for God to become all these things in my life as easy as to become a blade of grass in a crystal of snow. तो ये वाला मैं करती हूँ और ये बहुत टाइम से कर रही हूँ, तो आप देखो मुझे वो जमानी याद हो गया अभी है ना। तो अब मुझे वो पेपर खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए इनिशियली जब आप इसको करोगे, अगर आपके हेल्थ में किसी भी तरह का चैलेंज है, किसी भी रूप का चैलेंज है, आप पेपर खोल के इसको बार बार बोलते रहो। और उसके बाद देखना, महीने क्या मतलब 15 दिन में आपको याद होने लग जाएगी, बिकॉज इसकी भाषा बहुत सिंपल है ना। और हमको कोई ग्रामर या टेक्निकल चीजों में तो जाना नहीं है, हमको इसका भाव समझना है। और क्या ऑटो सजेशन हम अपने आप को बोल रहे हैं, अपने सारे ऑर्गन से बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं, द हीलिंग presence within me is healing me, repairing me, and making me whole and perfect now, and I give thanks for my perfect health, है ना। तो ये चीजें तो बिल्कुल ही कॉमन सेंस वाली चीजें होती है। और इनिशियली पढ़ के फिर हम याद करके ये नॉन स्टॉप हमारे जहन में चलेगी। नहीं तो आप इस एफर्मेशन को पढ़ के रिकॉर्ड कर लो, और जब आप कम्यूट कर रहे हो, कहीं पे खाली हो, आप वॉक करने का है, तो 5 मिनट 10 मिनट इसको सुन लो, 10 मिनट की रिकॉर्डिंग बना लो अपनी आवाज में, है ना। दैट ऑल्सो यू कैन डू, बट कंसिस्टेंसी से करना पड़ता है, कोई भी चीज बिना कंसिस्टेंसी के पूरी नहीं होती है। हाँ जी। How the subconscious controls all functions of the body. While you are awake or sound asleep upon your bed, the ceaseless, tireless action of your subconscious mind controls all the vital functions of your body without the help of your conscious mind. For example, while you are asleep, your heart continues to beat rhythmically, your lungs do not rest, and the process of inhalation and exhalation, whereby your blood absorbs fresh air, goes on just the same as when you are awake. Your subconscious controls your digestive process and glandular secretions, as well as all the other mysterious operations of your body. The hair on your face continues to grow whether you are asleep or awake. Scientists tell us that the skin secretes much more perspiration during sleep than during the waking hours. Your eyes, ears, and other senses are active during sleep. For instance, many of our great scientists have received answers to perplexing problems while they were asleep. They saw the answers in a dream. Oftentimes, your conscious mind interferes with the normal rhythm of the heart, lungs, and functioning of the stomach and intestines by worry, anxiety, fear, and depression. These patterns of thought interfere with the harmonious functioning of your subconscious mind. When mentally disturbed, the best procedure is to let go, relax, and still the wheels of your thought processes. Speak to your subconscious mind, telling it to take over in peace, harmony, and divine order. You will find that all the functions of your body will become normal again. Be sure to speak to your subconscious mind with authority and conviction, and it will conform to your command. Your subconscious seeks to preserve your life and restore you to health at all costs. It causes you to love your children, which also illustrates an instinctive desire to preserve all life. Let us suppose you accidentally ate some bad food. Your subconscious mind would cause you to reg- regurgitate it.
If you inadvertently took some poison, your subconscious power would proceed to neutralize it. If you completely entrusted yourself to its wonder working power, you would be entirely restored to health. Yeah. How to get नहीं, we'll just take this. So इस पूरे जो टॉपिक है इसमें इतनी खूबसूरती से लिखा हुआ है कि सबकॉन्शियस माइंड को तो हम देख रहे हैं ना काम करते हुए, जो हमारे अंदर जो हीलिंग प्रेजेंस है और जो डिवाइन वर्किंग प्रेजेंस है सबकॉन्शियस माइंड की, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पूरा चला रही है ना। हमारे बाल अपने आप ग्रो हो रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं इस बारे में। हमारी स्किन रीजनरेट हो रही है, हमको कट लगता है, अगले दिन उसके ऊपर एक पपड़ी जम जाती है, तो उसमें से वो ब्लड फ्लो रुक जाता है और वो हील होने लग जाती है, नई स्किन जनरेट हो जाती है, सांसें चलती जा रही हैं, लंग्स एक्सपैंड हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सब होता जा रहा है ना। तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी यहाँ पे बता रहे हैं कि वो अपने आप काम करती है, लेकिन आप कॉन्शियस माइंड से उसको क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, ये तो इसमें उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि सपोज कॉन्शियस माइंड होता है जो परेशानी कर देता है। जैसे अगर आपको सपोज किसी एक पर्टिकुलर की प्रेजेंस नहीं पसंद है अपनी जिंदगी में, तो जब भी कोई इंसान आपके सामने आता है, आप एकदम से गुस्सा, मतलब यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट पर्सन बिकॉज आपका जो भी है, जो भी हिस्ट्री जोग्राफी रही होगी, या किसी पास्ट को कॉन्शियस माइंड में कोई पास्ट इमेज आ जाती है, कोई पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा आ जाता है विच वॉज नॉट अ वेरी प्लेजेंट वन, है ना। तो आप उसको सोचते हो कि वो वाला एक्सपीरियंस आपके आपके जहन में आया, आपके दिमाग में आया, तो कॉन्शियस माइंड में आया। अब उसकी वजह से आप नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ जो आपके सबकॉन्शियस माइंड कर रहा था, है ना, उसमें चेंज आने लग जाएगा। जैसे आपकी हार्ट की रिदम बड़ी कंफर्टेबली चल रही है, एकदम से आपको पास्ट का कोई ऐसा एक्सपीरियंस याद आएगा जो आपके लिए अच्छा नहीं था, जिसमें आपने बहुत ह्यूमिलिएटेड फील किया था, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं था और आपको बहुत गुस्सा आया उस पर्सन पे। सडनली हार्ट बीट बढ़ने लग जाएगी, आपके प्यूपिल्स डायलेट होने लग जाएंगे, आपकी मसल्स थोड़ी टाइट होने लग जाएंगी। ये उसका फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होता है, क्योंकि आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो, जो हो चुका है, जो बीत गया है, जिसका कुछ लेना देना ही नहीं है प्रेजेंट से, है ना, बट यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट इट। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि सबकॉन्शियस माइंड तो हमेशा लाइफ फॉरवर्ड होता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड कभी कभी ऐसी चीजें पिक कर लेता है जो दिमाग को परेशान करती हैं, डाउट करती हैं, फियरफुल करती हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो पूरी तरह से हील होने लग जाता है ना। तो ऐसे में क्या करना है, तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी बोल रहे हैं, स्पीक टू योर सबकॉन्शियस माइंड इन दिस सिचुएशन, टेल हर जस्ट गो काम एंड स्टिल। कहते हैं ना, जब दिमाग बहुत ज्यादा है, कुछ परेशानी हो रही हो, स्टैंडिंग स्टिल, बी काम, पॉइज, जो हमने उस किताब में भी पढ़ा है फ्लोरेंस कॉवल्शन की, उन्होंने भी यही बोला था ना, पॉइज इज द वर्ड, बी काम, बी स्टिल। जब तक आप स्टिल नहीं रहोगे, थामना, स्टिलनेस का मतलब ये होता है आप थामो अपने आप को उस वक्त, गो एब्सोल्युटली लाइक पीसफुल, and as a result of that now you will see, and then now you talk to the subconscious mind, है ना। आप उसको ऑर्डर दो ऑफ पीस, हार्मनी एंड डिवाइन ऑर्डर टू प्रिवेल, कि पीस, हार्मनी, डिवाइन ऑर्डर लाने के लिए, और आप देखोगे कि सब कुछ वापस नॉर्मल होता गया। तो ये हैक बताया है इन्होंने जैसे ये, आई जस्ट रीड दैट फॉर यू। सो भारती, कैन यू जस्ट रीड दिस पैराग्राफ अगेन, स्पीक टू योर सबकॉन्शियस। speak to your subconscious mind, telling it to take over in peace, harmony, and divine order. You will find that all the functions of your body will become normal again. Be sure to speak to your subconscious mind with authority and conviction, and it will conform to your command. इसका ये मतलब है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलो, पीस, हार्मनी, डिवाइन ऑर्डर टेक ओवर करने के लिए, मतलब सौंप दो। आपको परेशानी चल रही है ना, आप अपने सबकॉन्शियस को बोलो, मैं आपको सौंपती हूँ टू द डिवाइन इंटेलिजेंस विद इन मी, आई एम, प्लीज टेक ओवर एंड ब्रिंग पीस, हार्मनी एंड डिवाइन ऑर्डर। अब आप देखोगे कि ये तीनों चीजें आपकी जिंदगी में आने लग जाएंगी, मतलब उस वक्त आप सेंस करोगे दैट सारे फंक्शंस आपके नॉर्मल हो जाएंगे। और लेकिन उन्होंने बताया सबकॉन्शियस माइंड को अथॉरिटी से बोलो, कन्विक्शन से, दैट आई एम सरेंडरिंग टू यू, प्लीज टेक ओवर एंड ब्रिंग पीस, हार्मनी एंड डिवाइन ऑर्डर, एंड सबकॉन्शियस विल yield दैट फॉर यू, इट विल कंफर्म टू दैट डिमांड। यही इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें है कि कोई भी चीज अगर आपको करनी है ना, मतलब कोई आपको, जैसे हमारे हार्मोन्स नॉर्मल निकल रहे हैं, आप जैसे कार्बोहाइड्रेट खाओगे उतना ही इंसुलिन निकलता है
है ना। अब बॉडी में कितना पहले से प्रीसेट है, बॉडी को कैसे पता है कि कितने यूनिट इंसुलिन निकालना है, अगर आपने एक पीस ब्रेड का खाया है तो कितना इंसुलिन निकालना है। कोई तो इंटेलिजेंस है ना, हायर पावर, जो बॉडी के सारे सिस्टम को चला रही है, सारे हॉर्मोन्स को बता रही है कि आज इतना थायराइड निकलना है, कल उतना निकलना है। बस यही है कि बीच बीच में परेशानी के एपिसोड्स जब हमारी जिंदगी में आ जाते हैं तो हम इनसे अफेक्टेड हो जाते हैं, और इनसे अफेक्टेड होने के कारण जो नेचुरल फ्लो ऑफ हीलिंग है वो इंटरफियर होता है। तो अब थायराइड को पता नहीं है, वो कभी कभी कम निकल रहा है, कभी कभी ज्यादा निकल रहा है, क्योंकि परेशानी दिमाग में थी, है ना। तो अब आप देखोगे कि जब आप इस तरह से सरेंडर करने लग जाते हो, इतनी हायर पावर जो आपके अंदर है, सबसे बड़ा यूनिवर्स का डॉक्टर हमारे अंदर बैठा हुआ है, तो हमें किसी भी चीज के परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप कन्विक्शन और कमांड के साथ अपने सबकॉन्शियस से बात करते रहो। जैसे इसमें हमने देखा है दैट कोई भी अगर पॉइजन लिया तो आपकी बॉडी उसको न्यूट्रलाइज करती है। अगर आपने सड़ा हुआ खाना खा लिया जो बहुत इन्फेक्टेड था, खराब था, तो आपको उल्टी हो जाती है ना। आप रिगर्जिटेट कर लेते हो उसको, उल्टी उल्टी कर देते हो वापस, बिकॉज बॉडी उसको अंदर ही नहीं ले जाना चाहती है। और अगर मान लो वो उसके थोड़े से पार्टिकल्स डाइजेस्ट भी हो जाते हैं इन्फेक्टेड खाने के, तो आपको लूजीज हो जाती है, इन्फेक्शन आपका वहां से निकल जाएगा, या तो ऊपर के रास्ते से निकलेगा या नीचे के रास्ते से निकलेगा, बट बॉडी उसको डील कर लेती है बहुत अच्छे से, है ना। अपने आप से ऐसी चीजें होती है, कोई भी गड़बड़ चीज खाओगे उसके अगेंस्ट आपकी एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है। लाइक कोई भी अगर बाहर से इन्फेक्शन आया हमारी बॉडी में, फट से उसके अगेंस्ट उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बन जाती है, और ये सारी चीजें अपने आप होती है, एंड देन वी आर रिस्टोर्ड टू हेल्थ। So, Bharti, this is all we'll be reading, and thank you so much. I'm so glad you could read. I think it was after a while. Thank you so much, ma'am. Thank Thank you. you so much for your beautiful reading. So we have read two very powerful experiences, paragraphs and explanations, और अब टाइम है हमारा इनको अप्लाई करने का अपनी जिंदगी में। तो इसीलिए कोई भी चीज आपको परेशान नहीं करनी चाहिए बिल्कुल, है ना, बिकॉज आपके पास पूरी पावर है उसको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने की। सो लेट्स जस्ट डू दैट, एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज चैप्टर।